Today we are going to study about fish dissection, that is the virtual fish dissection. My Associate Professor Samrat Prithviraj Chauhan, Government College Ajmer. Dear students, before doing the dissection of the fish, let me tell you some important tips because dissection is it's very tricky. If you know the tricks, it's very easy to dissect an organism. Fishes, मछलियाँ जैसे अपन जानते हैं fishes, they are found in water. They are aquatic organisms. They belong to the phylum Chordata, that is a vertebrata, and they are called as Pisces. What is dissection? It is a method, scientific method to study an organism. Scientific method to study an organism. और जो study होती है, the study of fish is called as ichthyology. What is the study of fish called? It is called as ichthyology. So, before proceeding to the dissection steps, let me tell you some important tips. What are the requirements and how we are going to perform the dissection. इसके लिए सबसे पहले हमें we require a tray. Tray में we are going to put a fish जो कि medium size की है fish. And the instruments we require are the scissor, the forceps, then we require the tweezers and the gloves we have to wear. Gloves protection के लिए when we are going to dissect a fish. So these are the protocols which we are going to do. As you know, dear students, कि जो living things हैं, they are similar to and different from each other. If we look at the inside of the fish, we will learn that certain organs and systems, they are similar to human beings and some are different. So first when we want to dissect, हमें dissect करना है fish को, तो हम सबसे पहले पता करेंगे कि उसका जो anal part है और वहाँ से हम superficially उसमें cut लगाएंगे. One thing I want to tell you कि जो stomach है, जो stomach का fish है, उससे हमें पता पड़ जाता है उसकी क्या habit है, its feeding habit. तो when we are starting performing the dissection, then we find the anus, the only opening on the underside, and then we cut it. जो cut होगा वो कैसे होगा? या you can see कि superficial होगा, ज़्यादा deep नहीं होगा, क्योंकि anus से हम gills तक लेके जा रहे हैं. तो it should be, otherwise the organs are cut, and then cut a lateral line up the side of the fish so you can open it up to see the gut and the other organs which are present inside the fish. The ribs of the fish and the, already you all notice the ribs of the fish and the thickness of the meat. तो process of dissection, तो इसमें क्या है, first आप tray में आप उसको fish को place कर देंगे, उसको fix कर दिया. If it is living तो anesthesia देंगे हम, ग्लव्स पहनेंगे एंड देन वी स्टार्ट द डाइसेक्शन. तो इसके लिए क्या है, ये फर्स्ट मैंने आपको बताया कि जो एनल पार्ट है इसका, वहाँ से कट लगाएंगे. और कट कैसा होगा? कट विल बी अ सुपरफिशियल कट होगा, ज़्यादा डीप नहीं होगा, नहीं तो फिश है कि ऑर्गन से वो डैमेज हो जाते हैं. तो व्हेन वी हैव पुट द कट, यू शुड नो दैट आफ्टर कटिंग इट वी टेक आउट द ऑर्गन्स निकालेंगे उसके और स्टडी करेंगे. कई बार फिशेज़ हैं जो बोनी फिशेज़ हैं, उनमें जो गिल्स हैं वो कवर्ड है ऑपरक्यूलम से, तो ऑपरक्यूलम को हटाया और गिल्स को दिखाई देंगे. कुछ फिशेज़ हैं उनमें गिल्स हैं नेकेड है, मतलब डायरेक्टली गिल्स दिखाई देते हैं एंड यू कैन रिमूव द गिल्स. तो बाय दिस यू कैन परफॉर्म. और ऑर्गन्स है, जब हमने कट लगा दिया उसके बाद ऑर्गन्स को वन बाय वन निकालेंगे एंड विल मेक द थिंग्स स्टडी ईजियर. तो हियर आई विल शो यू when the dissection is performed. फर्स्ट है गिल्स के बाद हमने, यू कैन सी हियर इन द डायग्राम के आईज है और लेंस है, तो हम उसके बाद आईज और लेंस को निकाला. दिस इज द आई एंड दिस इज द लेंस ऑफ द फिश. देन कमिंग टू द नेक्स्ट डायग्राम, उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है हार्ट रेड कलर का, गिल्स के पास दिख रहा है, दिस इज अ हार्ट. और दूसरा लार्ज ब्राउनिश है, दैट इज अ लिवर. ये राउंडेड स्ट्रक्चर है इंटेस्टाइन, गोनर्स, और ऊपर जो ये वाइट सा दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज किडनी. इधर देखो फिन्स हैं, फिन्स भी बहुत क्लियर है, इसके अंदर ये एनल फिन है, यहाँ से कट लगाया था. ऊपर वाले डॉर्सल फिन कहला रहे हैं, ये कहला रहे हैं कॉडल फिन, और पेल्विक फिन्स एंड पेक्टोरल फिन्स, ये जो पैड फिन्स होते हैं.
इन द नेक्स्ट डायग्राम यू कैन सी द किडनी ऑफ द फिश. ये देखिए आपको येलो के बीच में ब्राउन जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द किडनी ऑफ द फिश. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डायग्राम, दिस इज एन ओवरी ऑफ द फिश, है ना. इन फीमेल में ओवरी ऐसी दिखाई देगी. दैन द टेस्टिस ऑफ द फिश, ये येलो है. अगर फिश मेल है तो ऐसे टेस्टिस दिखाई देंगी. कुछ फिशेस ऐसी हैं जिनके अंदर आपको क्या है कि सिम ब्लैडर, एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट होता है. तो ये हेल्प करता है कि इसके अंदर इसमें एयर फिल्ड होती है. जो फिशेज हैं स्विम कर रही होती है वाटर में, तो बायंसी को मेंटेन करता है. तो दिस इज ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द फिश. और ये और जो अदर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, फैट बॉडीज हैं. तो इन दिस वे, तो होप यू हैव एंजॉयड योर फिश डाइसेक्शन. It is a virtual dissection, but still I think you will able to study and understand the internal organs which are found in fish, and you can recognize it. जो डाइसेक्शन है जनरली इसमें कहते हैं कि डू द डाइसेक्शन, टेक आउट द किडनी और दिस स्विम ब्लैडर. तो बाय दिस यू कैन सी एंड द डाइसेक्शन इट्स मेक्स द स्टडी ऑफ एनाटमी वेरी इजी. किसी भी ऑर्गेनिजम्स का हम स्टडी करें तो एनाटमी को स्टडी करना, इंटरनल एनाटमी को स्टडी करना, ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई करना, उससे बहुत अच्छा रहता है. एंड द स्टूडेंट्स दे रिमेंबर. एंड सो होप you enjoyed your fish dissection, whether it was virtual or physical, with a greater knowledge about fish anatomy, and we can come to understand how to protect them. इससे हमें पता पड़ जाता है कि हम कैसे फिशेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनकी पॉपुलेशन को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी में भी ऐड करती हैं. और द स्टडी ऑफ द फिश इट इज़ कॉल्ड एज इक्थियोलॉजी, एंड द डाइसेक्शन इट इज़ अ साइंटिफिक वे ऑफ स्टडिंग एन ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उससे हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं. तो डिफरेंट फिशेस हैं, उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं. ऑर्गन्स लेकिन जो है ऑलमोस्ट सिमिलर हैं. ऐसे किडनी ऐसे ही होगी, स्विम ब्लैडर ऐसा होगा, हार्ट एंड लिवर. होप यू हैव अंडरस्टूड एंड यू विल बी एबल टू डाइसेक्ट द एनी टाइप ऑफ द फिश गिवन टू यू. एंड these are the protocol. हमेशा always wear the gloves, and because sometimes the spines they get embedded in the hand and cause injury. So now this dissection of the fish has been become easy by studying this, and in a next class we are going to study some important next topic. Till then, goodbye, thank you and take care.